Are you able to see my screen, right? And please confirm. Voice also clear, right? Yes, sir. Yeah, okay. So yesterday actually we learned about the overloading, right? So we just learn one case, right? जहाँ पर हमने देखा था, राइट, ये ऑटोमेटिक प्रमोशन, राइट, इन ओवरलोडिंग. सो यहाँ पर ये चार्ट भी है. सो जैसे कि अगर हमने यहाँ पर कैरेक्टर लिया है तो कैरेक्टर विल प्रमोट इंट. अगर इंट है तो ठीक, नहीं तो विल प्रमोट वन मोर स्टेप. तो ये कैसा होगा, प्रोसेस विल कंटिन्यू अनटिल ऑल पॉसिबल प्रमोशंस. जितना भी पॉसिबल प्रमोशन है वहां तक होगा. स्टिल अगर नहीं पाया वो चीज तो क्या करेगा फिर, नाउ इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर. सो Hello. यस, ओके. एंड now basically let's go to case 2. Case 2. So here let me write. Now we are going to just go on mute, guys. Go on mute. Case 2, right? So in case 2, first let me write a one simple program, just like public public class and name will be test, right? The simple class. And here I will write the two method. The first, the method name should be same, right? We know that in overloading, right, method name should be same. So public and void m1, it will uh string, it will accept string s. And then you can write console dot write line string args, right? String args, this method. So this method will accept the string parameter, right? And let me create one more method similar, like, just a second, public void m1. The method name should be same, right? And this method will accept the object console dot write line, and it will accept the object. So object args, क्या ये object args, and this method will be close here, right? So हमने क्या किया बेसिकली, जस्ट दो मेथड हमने क्रिएट किया, राइट, सेम नेम से एंड डिफरेंट आर्गुमेंट से. पहले में क्या आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग, एंड द सेकंड विल एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट, राइट? Yes. नाउ let me write the main method, like public static void main
string array args, right? And here basically we will call that. So now close this one and then close the class, right? Okay. Now let me create the object first. How can create the object? Just like test, create like test t is equal to new test, right? So just create the object like that, right? Now let me call, if I call t dot m1, t dot m1, and if I pass here the new object, right? So which method will get the chance in this case? The string will get the chance or the object will get the chance? What output will come here? The object. Object args will come, right? So output will be object args, right? Object args, because ये पॉइंट क्लियर है, राइट? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली ये मैच कर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, राइट? इसको ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट आर्ग्स प्रिंट कर देगा. दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? नाउ if I call t dot m1 and if I call here string, just like one string Majid. Now which one will get chance in this case? In Majid, m1 dot Majid. If I pass that Majid, then which method will get the chance? कौन सा method execute होगा? M1 is string. Yeah, so output will be string args, right? String args. यहां तक तो कैसा है कि पॉइंट क्लियर है, राइट? नाउ तीसरे केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पर t डॉट, इसमें t डॉट m1 एंड हियर I will call null. Null. Now please tell me which method will get a chance, because null is applicable for string as well as the object, right? दोनों के लिए applicable है null. Then which method will get a chance here? Method will get a chance? String args or object args? Because null is applicable for both method. स्ट्रिंग में भी कॉल कर सकते हो और ऑब्जेक्ट में भी कॉल कर सकते हो. देन विच मेथड विल गेट अ चांस हियर? स्ट्रिंग आर्ग्स और ऑब्जेक्ट आर्ग्स? विच वन? String args. Okay, string args. And why? String args. Yeah, it's correct. The string will get a chance, object not. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? हर एक का पेरेंट है, राइट? और यहां पर स्ट्रिंग क्या है? चाइल्ड है. तो ऑब्जेक्ट का चाइल्ड क्या है? स्ट्रिंग है, राइट? तो ये चाइल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देगा एज कंपेयर टू पेरेंट के. क्यों? क्योंकि जो काम अपने जेन्युइनली, अगर हमारा मतलब जो जिस तरीके से हम अगर दुनिया में भी देखें कि मतलब किस तरीके से क्या होता है, एक अगर जैसे कोई एक बड़े पोस्ट पे रहता है, राइट? और हम किसी काम के लिए जाते हैं, जस्ट लाइक एक सिंपल काम रहता है, राइट? हमारा तो जो बड़े पोस्ट पे है, डीएम है या उससे बड़ा पीएम ले लो, सीएम ले लो, कोई भी, उससे जो नीचे लोग रहते हैं, अगर हमारा काम जो है वो नीचे वाले लोग के लिए है, मतलब वो नीचे वाले लोग हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो क्या होगा? वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे वाला ही बंदा मैनेज कर लेगा, बोलेगा ओके भाई हो गया तुम्हारा काम, जाओ, राइट? तो सेम यहाँ पर कैसा है? ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट है और स्ट्रिंग जो है वो चाइल्ड है, राइट? जब चाइल्ड इस चीज को हैंडल कर ले रहा है तो वो ऑब्जेक्ट के मतलब पेरेंट के पास जाने की क्या जरूरत है, राइट?
तो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम नल पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, तो स्ट्रिंग मैनेज कर ले रहा और ऑब्जेक्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो नोट नोट में लिखो कि while resolving overloaded method, while resolving overloaded method, compiler will always compiler will always give the priority, give the priority to child, give the priority to child, child type, give the priority to child type, give the priority to child type argument, give the priority to child type argument as compared to parent type argument, as compared to parent type argument. समझ में आया? पॉइंट क्लियर है? And just case 2, you can note down this example as well, because each and every case itself is very very important. So after this notes below, you can note down this program and just put the heading like case 2 and just write this program. Now let's jump on case 3. Case 3. So in case 3, let's understand one new things in case 3. इस केस 2 को बेसिकली माइंड में रखना, देन केस 3 थोड़ा और क्लियर होगा पॉइंट को। हाँ, सो नाउ लेट्स फर्स्ट क्रिएट वन सिंपल प्रोग्राम लाइक पब्लिक क्लास टेस्ट and you can close it. Now create a one method like public void m1, and this will accept string s. Now console dot write line, this will be the string args, right? And second method, basically the method name should be same, so like public void, the method name should be same, this means m1, the argument will be different, right? So argument this time basically I'm going to take string builder, string builder, and this will be sb, right? And here console dot write line, string builder, and just close this method. Okay, now let me create a main method so we can create the object and we can call it, right? So now public static void
man and here, okay, sometime pen is just string, this will be array. And now let me close this one and class as well, right? First, let me create the object of it. टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. टेस्ट t is equal to new टेस्ट, राइट? अभी अगर मैं t डॉट m1, if I pass Majid, so what output will come? Which method will get a chance to call? String or string builder? So here the string r will get a chance and the output will be string args. Right? Now the second, t dot m1, if I pass new string builder and if I pass here Majid, now which method will get a chance? अगर मैं यहाँ पर string builder पास करता हूँ तो definitely string builder will get a chance, right? Right? Yes. Builder. Okay. Now third case, you can see if t dot m1 और इसमें मैं null पास करूं, again null is applicable for string as well as string builder. null दोनों के लिए applicable है. अब इस केस में null किसको जाएगा? केस सेकंड में हमने क्या देखा था कि स्ट्रिंग वहां पर क्या क्या था? सेकंड केस में हमारे पास स्ट्रिंग था और ऑब्जेक्ट था, राइट? इसमें कैसा है? पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है. पर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है. तो एन जो है, एन नल, नल किसको जाएगा? किसको जाएगा नल? कौन सा Builder. मेथड को? स्ट्रिंग बिल्डर को क्यों जाएगा? स्ट्रिंग को क्यों नहीं जाएगा? सो बेसिकली यहां पर एम्बिग्यूअस एरर आएगा. क्या एरर आएगा? एम्बिग्यूअस एरर आएगा. द रीजन बिहाइंड इट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. तो एम्बिग्यूअस एरर, अब एम्बिग्यूअस एरर क्यों आएगा? यहां पर देखो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. अभी उसी चीज को लो, पहले केस 2 को ही लेते समझते. केस 2 में क्या हुआ था? केस 2 में क्या हुआ था कि जब हमने नल पास किया था तो चाइल्ड और ये ऑब्जेक्ट दोनों को एप्लीकेबल था, तो चाइल्ड ने हैंडल कर लिया, राइट? तो पेरेंट को कुछ बुरा नहीं लगा. क्यों? क्योंकि उसकी के चाइल्ड ने किया, राइट? जैसे अभी एक नॉर्मल सी बात देखो, एक अपना जैसे कि एक पेरेंट्स है, उसका चाइल्ड है, राइट? कोई काम चाइल्ड कर देगा तो पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा, राइट? बोलेगा ठीक है मेरे बेटे ने ही तो किया है, राइट? तो फाइन है.
पर यहां पर आओ, यहां पर अगर M1 कंपाइलर अगर इसको पास करता है, इसको प्रायोरिटी देता है चाइल्ड को, तो क्या होगा, स्ट्रिंग बिल्डर जो है बुरा मान जाएगा, बोले मैं भी तो हैंडल कर सकता था, मुझे नहीं दिया, राइट। तो कंपाइलर और इसकी नहीं जमेगी, फिर तो मसला हो जाएगा। फिर स्ट्रिंग बिल्डर को अगर कंपाइलर ने चांस दे दिया तो स्ट्रिंग बोलेगा अरे मैं, मेरे को इतना वो, मेरे मेरे को छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दिया, राइट समथिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपाइलर को प्रॉब्लम हो रहा है डिसाइड करने में कि किसको चांस दूं। तो कंपाइलर क्या करेगा, बोलेगा भाई दोनों को नाराज करने से अच्छा है कि दोनों को ही नहीं कॉल करता हूं, और वो क्या बोलेगा, एम्बिग्यूअस एरर, मतलब कि कंफ्यूजन है भाई, उसको नहीं समझ रहा है किसको कॉल करूं, मतलब वो किसी को नहीं कॉल करेगा, एरर दे देगा, समझ रहे हो ना। तो एम्बिग्यूअस एरर ऑलवेज बी कम, जब कभी भी कंफ्यूजन होगा, जब कभी भी कंफ्यूजन होगा किसी भी चीज में ना, तो मोस्टली वहां पे एम्बिग्यूअस एरर ही आएगा। सेम थिंग हियर, it will come ambiguous error. So here you can write compile time error, it will get ambiguous. Ambiguous error. Okay, point is clear. Yes, sir. So यहाँ पर ambiguous error क्यों आ रहा है? Because the compiler is confused, right? Because string builder also accept the null and string also accept the null. But string और string builder में कोई relation नहीं है। समझ में आया। दूसरे के केस में क्या था, रिलेशन था केस 2 में, पर केस 3 में रिलेशन नहीं है। देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर, दैट द रीजन इन थर्ड केस वी विल गेट द एम्बिग्यूअस एरर। पॉइंट इज क्लियर। Yes, sir. सो जस्ट नोट डाउन दिस प्रोग्राम केस 3। यस, नाउ इज क्लियर। Yes, sir. ओके, केस 4, राइट, केस 4। Now let's understand case 4. Hmm? Case 4, like, let me write the program, public class test, and then create the method. The first method will be public void M1. The first parameter will be int I, and the second parameter will be float f. And now print console dot write line, and this will be int float, int float, right, and close the
method. Now the second method, like this will be also the public void m1, and it will accept the first parameter float, and the second parameter will be int. Console dot write line, and here float and int, just vice versa. Okay, now let me create the main method, and let's create the object over there, like public static void main string args open, close, and close the complete class as well. Okay, now let's create the object like test t is equal to new test, right? And now if I call t dot m1, if I call 10 comma 10 dot phi f, which method will get a chance? Which method will get a chance? पहले हम क्या पास कर रहे हैं? इंट पास कर रहे हैं, एंड द सेकंड बेसिकली क्या पास कर रहे हैं? फ्लोट पास कर रहे हैं, राइट? सो इस केस में क्या होगा कि ये देखो इंट है और फ्लोट है, राइट? तो ये क्या करेगा? इसको Yes. मैच करता है, ये एग्जैक्ट मैच कर जा रहा है, तो यहां पर जो है आउटपुट आएगा इंट और फ्लोट, Int float. इंट float, right? In second case, if I call like 10.5 and f and then 10, in this case basically 10.5 float को मैच कर रहा है and int को मैच कर रहा है, तो in this case float and int will get the output, right? Now in third case, like if I call t dot m1 and if I call 10 and 10, then what will get here? Which method will get a chance? Which method will get a chance? So just vice versa, right? So you can say here 10. 10 basically, the if you match the first case, right? 10 int is matching, right? And the 10, this 10 is float, is not matching, right? But it will be promoted, right? Yes, sir. Into float. Int to like float. So it will get a chance first method, right? Now let me check the second method. So second method, here the float, right? So 10 will promote here to float. That's match it. 10 is int matching. In both case, actually दोनों मेथड को देखो, राइट? दोनों मेथड को क्या मिल रहा है? चांस मिल रहा है कॉल करने के लिए. तो आइदर वी कैन से कि जैसे कि इंडिया में बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये कह सकते हैं कि अगर हम इंडिया में हैं तो ये मेथड को चांस मिलेगा, राइट? और अगर हम सऊदी अरबिया हैं तो ये मेथड को चांस मिलेगा टू लेफ्ट टू राइट. ऐसा है क्या? कंट्री इंडिपेंडेंट है क्या लैंग्वेज? नहीं, कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है. एवरी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, प्रोग्राम सेम चलेगा. तो ये तीसरे केस में क्या होगा?
एम्बिग्यूअस एरर आएगा। क्यों एम्बिग्यूअस एरर आएगा? क्योंकि दोनों मेथड जो है वो वैलिड है। समझ में आया? इस केस में क्या होगा, कंपाइलर को दोनों कॉल करने के लिए वो है, तो वो क्या करेगा, वह दोनों को नहीं कॉल करना है, हम क्या करते हैं, इसको एम्बिग्यूअस एरर दे दे, मतलब किसी को हम नाराज नहीं करेंगे, जैसे हमारा तीसरे केस में हुआ है। समझ में आया? तो क्या आ जाएगा यस यहाँ पर? एम्बिग्यूअस एरर। एम्बिग्यूअस एरर। एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का रीजन क्या है? पहला एंड मेथड में कॉल होगा, दैट्स फाइन, पहला मैच कर जाएगा, दूसरा मैच नहीं करेगा, ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा, नेक्स्ट लेवल जाएगा, नेक्स्ट लेवल, और उसको फ्लोट मिल जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा, 10 है, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, क्या करेगा, ऑटोमेटिक प्रमोट करेगा, राइट, मैच कर जाएगा, 10 तो यहाँ पे मैच कर ही रहा है, तो दोनों मेथड मैच कर रहा है, इसकी वजह से क्या दे देगा वो, एम्बिग्यूअस से दे देगा, राइट। पॉइंट इज क्लियर? एनी डाउट? नो सर। And if M1 10.5.f and 10.5.f, in this case, what output we will get? Which method will get a chance? Which method will get a chance? So here Currently you can see, here float। अगर पहले मेथड को यहाँ पर देखा जाए 10 टू फ्लो, यहाँ पर फ्लोट है, राइट, तो पहला मेथड जो है वो इंट है, राइट, तो फ्लोट से इंट की तरफ बैकवर्ड ऑटो प्रमोशन नहीं होता, राइट, आगे होता, मतलब हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप की तरफ प्रमोशन नहीं होता है, लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप की तरफ प्रमोशन होता है, राइट। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे नहीं चलेगा, राइट। सेम केस सेकंड में भी देखो, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर भी नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, कांट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट, मतलब क्या है, ये फ्लोट है, पहले मेथड में भी यहाँ पे इंट है, दूसरे मेथड में भी इंट है, राइट, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एरर क्या आएगा, कांट कन्वर्ट, कंपाइल टाइम एरर, कांट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू, पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज यस क्लियर? सर। यस ओके। सर। ओके। नाउ, लेट मी, ओके, ये नोट कर लो प्रोग्राम, एंड केस 4, राइट। सो केस 4 तक पॉइंट क्लियर है ना, ईच एंड एवरीथिंग बेसिकली, राइट, इसमें यस ज्यादा सर। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट, सिंपल है सब चीजें, बस क्या है, चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि ऑटोमेटिक प्रमोशन कब होगा, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है कि नहीं, ये कुछ चीजें हैं जो कि की पॉइंट है, उसको माइंड में रखना है जब ओवरलोडिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो होते हैं ना, एप्टीट्यूड टेस्ट में आते हैं, कंपनी के एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, उसमें ये चीज पूछे जाते हैं मोस्टली, तो अगर पॉइंट क्लियर है तो उसको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, समझिए। नाउ लेट्स जंप ऑन केस 5। केस 5। केस 5। Case 5. Just create a one simple class, public class test, and inside this you can create a two method like public void m1, and this will accept the int argument, int type, and here console dot write line, this will be general method, right.
and let me create one more method like public void m1, and this will be params. 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 Do you know the use of params? मैंने बताया था फंडामेंटल में. हाँ, फंडामेंटल में मैंने बताया था सी शार्प के फंडामेंटल में पैराम्स क्या होता है. फर्स्ट लेट मी टेल यू. फर्स्ट लेट मी राइट द console method. Console dot write line, and this will be the params. तो बेसिकली हमने यहाँ पर दो मेथड बनाया है. द मेथड नेम सेम है राइट, पर आर्गुमेंट जो है वो डिफरेंट है. पहला क्या है, एक सिंपल सा इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, एंड द सेकंड जो है वो अरे एक्सेप्ट करेगा, बट वो क्या है, पैराम्स है. हाँ, अब पैराम्स में क्या होता है कि पता होगा, पर फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ. इसमें कैसा जीरो एक्स वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकता है, मोर देन जीरो मतलब वहां पर 1 2 3 कितना भी पास कर सकते हो, वो एक्सेप्ट कर लेगा राइट. तो नाउ लेट मी क्रिएट द मेन मेथड एंड call it, so you will get more idea. Like if I create the main method like public static void main string args, close this method and close the class, right. Now in this case here, let me create the object first, like test t is equal to new test, right. If I call t dot m1, and I'm not passing anything here, right? Then which method will get a chance? I'm not passing anything here, right? तो फर्स्ट वाले में देखो क्या, इंटीजर x, राइट. तो इंट x वहां पर उस मेथड को तो चांस नहीं मिलने वाला है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक वैल्यू तो चाहिए इसको इंटीजर, राइट. m1 इसको देखो, ये पैराम्स की क्या होता है इसका बेनिफिट, मतलब आप चाहो तो जीरो वैल्यू पास करो, मतलब चाहो तो वैल्यू पास मत करो, या चाहो तो मोर देन 1 2 3 कितना भी वैल्यू पास कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पर हमने कुछ भी वैल्यू नहीं पास किया, देन बेसिकली इट विल गेट चांस, दिस मेथड विल गेट अ चांस, राइट. तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, पैराम्स. पैराम्स मेथड will get a chance, so output will come params method, right. The second t dot m1 10 10 and 20, right. Which method will get a chance? Tell me which method will get a chance. मैं क्या पास किया यहाँ पर, 10 and Sir. 20. सर बहुत हम्म सर दोनों के पास चाहिए सर. दोनों के पास, क्योंकि यहाँ पर एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, दो कहाँ से ये एक्सेप्ट करेगा, Yes, ये sir. मेथड. Yes, sir. Yes, sir. This method will not be accept the two parameter, right? Only one parameter will accept, right here, integer. और हम यहाँ पर Yes. क्या पास कर रहे हैं, दो वैल्यू पास कर रहे हैं ना, देखो 10 के बाद कॉमा है, राइट, एंड 20 है, राइट. Yes. Yes, sir. तो हियर बेसिकली इट विल गेट द अगेन पैराम्स मेथड विल गेट अ चांस, बिकॉज इसमें क्या है, हम जीरो भी पास करेंगे तो भी चलेगा, अगर 1 2 3 कितनी भी वैल्यू पास करेंगे तो भी चलेगा. सो बेसिकली हियर अगेन, Params. हियर अगेन
params method will get a chance. Now third case, t dot m1, if I pass 10, which method will get a chance? Because इस केस में कैसा है, दोनों मेथड देखो, इंट ये भी एक्सेप्ट कर लेगा ये चीज, और पैराम्स ये क्या है, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? क्योंकि पैराम्स में आप एक वैल्यू पास करो, दो वैल्यू पास करो, तीन वैल्यू पास करो, इट विल एक्सेप्ट इट, राइट? तो पहला कंडीशन भी वैलिड है, दूसरा कंडीशन भी वैलिड है, राइट? दूसरे मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, तो क्या आउटपुट आएगा? ambiguous error. Ambiguous error, right? No, it will not come ambiguous error here. The reason behind it, यहाँ पर ambiguous error का रीजन क्यों नहीं है? हाँ, यहाँ पर पहले इसको आउटपुट, इसका आउटपुट लिखते हैं, यहाँ पर कॉल होगा जनरल मेथड, इसका आउटपुट आएगा जनरल मेथड, ये प्रायोरिटी देगा जनरल मेथड को। अभी यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, सी साहब चूजेस द जनरल मेथड, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जनरल मेथड चूज कर रहा है, राइट? इंस्टेड ऑफ params int, सेकंड वैल्यू को बजाय वो क्या कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू को पूछ, एग्जैक्ट मैच बीट द पैराम्स, ये पॉइंट याद रखो, एग्जैक्ट मैच बीट द पैराम्स, जो एग्जैक्ट मैच की वजह से क्या कर रहा है, पैराम्स को वो बीट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो इंट 10 जो है वो क्या कर रहा है, यहां पर इंट एक है, यहां पर एक इसको मिल जा रहा है, तो यहां पर वो क्या कर रहा है, कॉल कर दे, राइट? इसके उस पे क्यों? क्योंकि यहां पर क्या एग्जैक्ट मैच मिल गया है, एग्जैक्ट मैच, राइट? Yes, sir. So if there is a method whose parameters exactly match the types of arguments you are passing, it will pick. समझ में आया? Yes. So params is only considered, params is only considered if there is no exact match, ये पॉइंट याद रखना, params is only considered if there is no exact match, just like a switch case, you know that, right? The switch case, so switch case में कैसा होता है, स्विच केस में जैसे कि मैं यहां पर अगर एक स्विच केस बनाऊं, स्विच केस, और यहां पर मेरा एक्सप्रेशन है, कंडीशन एक्सप्रेशन, और यहां पर मैं लिखूं केस वैल्यू 1, राइट? यहां पर हमारा क्या कोड रहेगा, जो भी हम कोड लिखेंगे, ब्रेक, देन केस 2 वैल्यू 2, यहां पर हमारा कोड रहेगा, देन ब्रेक, राइट? अभी जो डिफॉल्ट केस होता है स्विच में, डिफॉल्ट केस, ये डिफॉल्ट केस का काम ही यही होता है, राइट? कि अगर ये मैच ना किया, ये मैच ना किया, तो ये डिफॉल्ट जो है वो कॉल होना ही चाहिए, डिफॉल्ट है, राइट? सेम चीज यहां पर है कि अगर एग्जैक्ट मैच हो गया तो कॉल कर देगा, एग्जैक्ट मैच नहीं किया तो पैराम सही है, एज ए डिफॉल्ट जैसे स्विच केस में चल रहा है वो उसको कॉल जाएगा, क्योंकि पैराम्स जीरो भी एक्सेप्ट करता है, वन भी एक्सेप्ट करता है, टू भी एक्सेप्ट करता है, कितनी भी वैल्यू पास करो वहां पर वो एक्सेप्ट कर। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? Now, No, the sir. last case, basically the case 6. Case 6. So if I create a program like public class animal, right?
एक क्लास है एनिमल, राइट। मैं एक क्लास बनाता हूं पब्लिक क्लास मंकी। मंकी ये किसको एक्सटेंड करेगा? एनिमल को, राइट। नाउ let me create one more class public class test, and here inside this you can create two method, public void m1, and here you can pass animal type, मतलब एनिमल टाइप ये क्लास पास करो यहाँ पर, और यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, ये क्या होगा? एनिमल टाइप, राइट। नाउ पब्लिक वाइड m1, और ये क्या होगा? मंकी टाइप, राइट। कंसोल डॉट राइट लाइन, ये कौन सा टाइप है? मंकी टाइप, राइट। नाउ let me create a main method here, public static void main string args. Close the method and close the class, right? Point is clear. Now let me create the object of it and let me pass it. So here how can create the object like test t is equal to new test, right? And let me create the object of animal I want to be passed, right? So first create the animal object, animal a is equal to new animal, right? If I call t dot m1 and if I pass a, right, then which method will get a chance, right? Here क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम एनिमल का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर m1 जो पहला मेथड है एनिमल मेथड, मतलब एनिमल टाइप विल प्रिंट, राइट। हियर Yes. animal type will get a chance, right? Okay. And second case, अगर मैं मन की पास करूं, मन की m is equal to new मन की and t dot m1 m पास करूं,
Which method will get a chance? This monkey, right? Monkey The type. output will be monkey type, right? And now, in case third, right? Animal. अगर मैं एनिमल का रेफरेंस लेता हूं, एनिमल ए का, और ऑब्जेक्ट में लेता हूं मंकी का, राइट? न्यू न्यू मंकी. It is very important this point, huh? And if I call t dot m1 a1, sorry, m1, just a second, t dot m1, और अगर मैं यहाँ पर a1 पास करूं, then which method will get a chance? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एनिमल का रेफरेंस है और मंकी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, रन टाइम ऑब्जेक्ट क्या है? मंकी है, और जो रेफरेंस है वो एनिमल है, राइट? सो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? पेरेंट कैन होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, राइट? पेरेंट का ये एनिमल क्या है? यहाँ पर पेरेंट है, उस कंसेप्ट में मैंने बताया, राइट? ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो एनिमल पेरेंट है और मंकी चाइल्ड है, तो हम इस तरीके से एनिमल का रेफरेंस ले सकते हैं और ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. दिस मीन्स द पेरेंट रेफरेंस कैन होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट. ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट, इट्स वैलिड. दिस सिंटैक्स इज परफेक्टली वैलिड, नो एनी इशू, राइट? अभी कॉलिंग में क्या है? अगर M1 में पास करता हूं वहां पर, तो विच मेथड विल गेट अ चांस? एनिमल टाइप को मिलेगा ये चांस, या एनिमल टाइप को चांस मिलेगा, या मंकी टाइप को चांस मिलेगा? किसको मिलेगा? यहां पर मिलेगा एनिमल टाइप को चांस मिलेगा, एनिमल टाइप्स को मिलेगा. एनिमल टाइप्स को क्यों मिलेगा? क्योंकि जब मैं ओवरलोडिंग पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, तो बताया था कि जो होता है वो क्या होता है? रेफरेंस टाइप. द ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन ऑलवेज बी टेक केयर बाय द रेफरेंस टाइप इन ओवरलोडिंग. तो ओवरलोडिंग में एक बात ध्यान रखो, रन टाइम ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, समझ लो. ये थोड़ा सा सिंपल याद करने के लिए, एज ऑफ नो इसको भूल जाओ. ओवरलोडिंग में ये क्या है? मैं हमेशा इसी रेफरेंस को देखो, ये रेफरेंस है ना, हमेशा इसी को देखो. ये क्या है? लुक इट. बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द एक्शन. ओवरलोडिंग ये सिंपल तरीका है माइंड में रखने के लिए. तो यहाँ पर रन टाइम ऑब्जेक्ट ये है, रेफरेंस है. हम क्या देख रहे हैं? ओवरलोडिंग, राइट? यहाँ पर क्या हो रहा है? ओवरलोडिंग. तो ओवरलोडिंग का है तो क्या होगा यहाँ पर? एनिमल, मतलब इस मेथड को कॉल करेगा, ना कि इसको. आगे चल के हम देखेंगे ओवरराइडिंग, वहां पर ये चीज समझेंगे कि ये रन टाइम ऑब्जेक्ट किस तरीके से वहां पर रोल प्ले करता है. तो ओवरलोडिंग जो है अभी कंप्लीट हुआ, और हमने इसको अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझा. And you just practice this. Do you have any questions about this topic, overloading related? No, sir, अभी नहीं. Okay, so let's call it a day.